Everyone, you all are able to see the question paper? सबको question paper दिख रहा है? Everyone? Yes, ma'am. Okay, so turn on your camera, everyone, and let's start with the question paper. So in the last class we discussed about good evening. We discussed about the history of management thoughts, right? So इसमें हम लोगों ने 4 theories पढ़ा था. कौन कौन से वो theory है मुझे कौन बताएगा? The history of management thoughts में हम लोगों ने 4 theories पढ़ा था. कौन कौन से थे वो? 4 stages में divided है हमारा history of management thoughts. Who is going to tell me the answer of this? Raise your hand. बताओ कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? अंकु, she is not here, I guess. So many students are, I think. Monica? Yes, ma'am. Monica? Yes, ma'am. चलिए बताइए मुझे आंसर. The history of management thoughts. बताओ. नहीं याद है? No, ma'am. ओके, सो लास्ट क्लास में जो भी बच्चे थे वो सारे बच्चे नोट्स दे दीजिएगा दूसरे बच्चों को. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस. ठीक है, जस्ट yes, management is both science and art. Is one of these more important than the other? Under the what circumstances might one ingredient be important than the other? So this is the question. There are 3 questions basically which is left. Next one is formal and informal, and I guess formal and informal. But let's start with this. First of all, I just want to define that what is the meaning of management and what is the level of management. See, why I'm saying that we have to discuss about this management label, because the questions are arise from the management part. Once I'll discuss about the basics of the management, then we'll move toward the management is both science and art. Okay, so what is the meaning of management? Management क्या होता है? Management एक process है. Management is the process of doing what? Doing all the management functions. What kind of management functions? Planning, then organizing, staffing, directing and controlling. Why? Because to achieve the organizational goal with the optimum utilization of the resources which is present in the organization. And management is not one day process, but it is a continuous process. ठीक है? And who is responsible for management in the organization? Are managers. Who is responsible for the management? Managers, right? Management can be the general manager. Management में आपके general manager भी हो सकते हैं, and the departmental manager can be possible. ठीक है, तो management क्या है सबको clear हो गया? management का मतलब क्या है? You all want to write on this? लिखना चाहते हो क्या है management? लिखिए. Management is the process of planning, organizing. Management is the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Directing and controlling the resources and the activities, of a business to achieve specific goals in the most effective and efficient manner possible. So what I told you, that what is the meaning of management का मतलब क्या होता है? Managing the things, बहुत सारे लोग कहते हैं yes, in the shortcut we can say it, the managing the things, but how?
by doing these activities, planning, proper controlling, proper organizing, staffing. Okay, can anyone tell me that what is the meaning of planning? Planning का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? What is the meaning of planning? And thinking beforehand. Yes. Planning is somehow it is related with that what we are doing in the future. What is our course of action? Like it is basically a bridge which will basically tie you or which will link you that where you are and where you want to go. ठीक है, आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, ये आपका प्लानिंग डिसाइड करता है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज द प्लानिंग. ठीक है, सेकेंड टर्म इज दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. See, in every organization there are multiple works to do. बहुत सारे वर्क होते हैं आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में. मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट. तो हर एक डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उसमें एक एलिजिबल पर्सन और एलिजिबल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. So that is possible via staffing when we start hiring and recruiting the people. But what work who will do? Yes, समझ में आई बात? कौन person क्या काम करेगा? Which person is responsible for doing what work? Basically, the division of work is done in the organizing. When we are organizing the people according to the different work which is available. ठीक है? Next one is staffing. Exactly here we are concerned toward that right person at right job at right time is important. ठीक है, सही इंसान का सही जगह पे पोजीशन होना चाहिए. एग्जाम्पल में अगर कोई पर्सन जो है he is from the marketing background. ठीक है, earlier he worked as a marketing executive. Do you think that if we are hiring that person in the finance department, that will be the efficient thing? आपको लगता है ऐसा कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई पर्सन काम कर रहा था, अगर हमने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम दे दिया तो वो सही है? No, ma'am. Obviously no, because that person's eligibility and the experience is not matching with the type of the designation which is vacant. True? अगर फाइनेंस मैनेजर का पोजीशन खाली है, so ऐसे सिचुएशन में we are not going to hire the person who is 12th pass only. ठीक है, we required the person who did the MBA or post graduation from the finance background. So this is how the staffing is working. Now what is the meaning of directing? देखो मैं ये सारी चीजें आप लोग को बेसिक्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज द क्वेश्चन इज रेज फ्रॉम द मैनेजमेंट, और एक आध क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस तो कम से कम आप लोग पढ़ ही लेना, और FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर है. तो मैनेजमेंट में अब हमने क्या बात किया था नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्टिंग. See, if I am doing job here, if no one is supervising me, no one is motivating me, is it okay for me that I can able to do the job properly? No, ma'am. No. So motivation as well as the leadership who will guide us, who will motivate us, who will supervise us, that is important. So in directing, the three key thing which is required, that is leadership, second motivation, and the third one is supervision. So this is how the people is able to do their work in the efficient way, and more potential utilization is possible here. Next one is, last one is controlling. See, controlling is that stage, that is the last function of the management. Here we are basically focused on the budgeting. We are basically dependent on the result orientation. लाइक एग्जाम्पल में आप देखिए कि भाई एक इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग के टाइम पे जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन करना था 500 यूनिट इन अ मंथ और यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ है 200. सो इतने सारी चीजों के बाद भी 200 यूनिट इसीलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि मॉनिटरिंग जो होना चाहिए, एक मॉनिटरिंग जो होना चाहिए आपके मैनेजमेंट की तरफ से, उसकी कमी थी. ठीक है, the people are lacking from the work because there is a lack of proper monitoring system, proper controlling and proper budgetary system. Controlling is somehow based on the statistics and data.
Like we said that we have to produce 500 unit, now only 200 unit produced last time. So before happened such kind of result, it's better to control it before that. So controlling is related with the restrictions, related with the quality enhancement, related with the proper budgeting system, related with the past experience which the company faced. So this is controlling. I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay, Shubhan, why you are laughing a lot? कोई जोक वोक सुन लिया है क्या? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिख लीजिए फटाफट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिखिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पहला लिखिए डायनामिक. डायनामिक. यस ऋतिक. मैम कौन सा क्वेश्चन नंबर का बता रही हैं आप? क्या मैम कौन सा क्वेश्चन नंबर का बता रही हैं? क्वेश्चन नंबर, दिस इज नॉर्मल मैनेजमेंट के ऊपर बेसिक्स बता रही हूँ मैं. बेसिक्स. नो मैम मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हैं आप. नहीं Okay, नहीं, अभी बोथ साइंस एंड आर्ट पे नहीं पहुंचे, सिर्फ मैं बेसिक्स बता रही हूँ आप लोगों को मैनेजमेंट का. मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैनेजमेंट से आए हैं, तो बेसिक्स एटलीस्ट पता होना चाहिए आप लोगों को मैनेजमेंट का. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला लिखिए मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल एंड डायनेमिक. मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होते हैं, दे ओवरसीज एंड सुपरवाइज अ कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन सर्विस और प्रोडक्शन साइकिल. तो मैनेजर्स जो होते हैं दे आर डूइंग अ मल्टी लेवल वर्क, लाइक दे आर मॉनिटरिंग, दे आर गाइडिंग, दे आर सुपरवाइजिंग. सो मैनेजमेंट हैव नो ओनली इट हैव मल्टी फेस. बहुत सारे फेस है, बहुत सारे डायमेंशन है इसके. It is not only that there is a linear concept which is going on, but it is have a multiple phase or multiple dimension. ठीक है. बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो कंपनी को भी देखते हैं, कंपनी के बाहर भी, ओवरसीज में अगर कंपनी चल रही है वो भी देखते हैं, प्रोडक्शन साइकिल के लिए भी जरूरी है मैनेजमेंट, गाइडेंस के लिए जरूरी है मैनेजमेंट, प्रॉपर नीड्स जो आपके एम्प्लॉइज के उसको फुलफिल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. सो इन शॉर्ट इट इज अ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फॉर डूइंग वर्क, बट मैनेजमेंट इज फॉर सो मेनी थिंग, लाइक फॉर कंट्रोलिंग द एम्प्लॉइज, for employees welfare, for product life cycle, for overseas trading system, for everything management is required, because management will help us to understand the procedure and steps which we have to follow, and that will be in the formal way. Second is dynamic. See, always remember that management के ऊपर बहुत सारे principles तो आए हैं, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल 100% यूनिवर्सल एक्सेप्टेड तो नहीं है, मतलब रिजिड नहीं है. ठीक है. सो डायनेमिक का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है. तो यहाँ पर आपके जिस तरीके की नीड होगी इन्वायरमेंट का, मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट का जैसा इफेक्ट होगा, उस हिसाब से आपके मैनेजमेंट के प्रोसेस में भी क्या होगा, चेंजेस आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंटैंजिबल. Intangible. Okay, so management is something which we can experience, but we cannot see it. Are we able to see this is the management? Are we see that this page is a management? Is it possible that this page is a management? No, ma'am. No, because management can be implemented. It is the intangible thing which we cannot see, but we can experience that. We can face that, right? So management is the intangible thing. प्रेजेंस उसका रहेगा, वैल्यू रहेगा, एंड द मैनेजमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज. आपके आइडियोलॉजीज, पॉलिसीज, प्रोसेस, ये सब चीजें मैनेजमेंट है. सो इट इज टोटली इंटैंजिबल प्रोसेस विच वी कैन नॉट सी एंड विच वी कैन नॉट टच. ठीक है. लैपटॉप वी कैन सी, सो इट इज टैंजिबल. फोन वी कैन सी और टच, दैट इज टैंजिबल. Mask we can see and touch, it is tangible. But when we are talking about the management, we are not able to see it, but yes, we can experience it, we can face it. This is management is totally based on the principles, ideologies, policies, and that is intangible. Clear? Yes, ma'am. Chaliye. Next one is objective of the management. Objective of the management. Management के क्या क्या objective हैं? अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है होने का?
क्या? उद्देश्य, इसका रीजन क्या है होने वेरी का? गुड, वेरी गुड. उद्देश्य, रीजन, जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, और वी कैन से इट लाइक व्हाट इज द गोल, क्या चाहता है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव. कितने ऑब्जेक्टिव है? 3. इसको याद करने का तरीका POS. ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं हमेशा. तो P से यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और S से आपका सोशल ऑब्जेक्टिव. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो हो गया. तो मैनेजमेंट जो है वो सबको कंसिडर करता है. दे आर नॉट ओनली कंसिडरिंग द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, बट दे आर कंसिडरिंग द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स का मतलब जो जिसका भी आपके बिजनेस के साथ एसोसिएशन है. ठीक है, एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सबको कंसिडर करके चलना पड़ता है एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को. और मैनेजर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव और हैं. ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव और हैं. 12th में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज, पढ़ा था ना? जिसने भी बिजनेस स्टडीज पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रही हूँ. ओके ओके, मैं बता रही हूँ. नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उनको याद होगा, ये मुझे पक्का यकीन है. और नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं. चलिए, अभी ज्यादा साल तो हुआ नहीं है 12th से निकले हुए. यहाँ 3 जनरल ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 3 जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. अच्छा, सर्वाइवल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल हियर? ये ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बोलो अनीशा. मैम, सर्वाइवल मतलब कंपनी सरवाइव कर सके उतना के लिए जो करना हो कंपनी को, वो ऑब्जेक्टिव. एटलीस्ट कंपनी मार्केट अच्छा, में रह कंपनी सके. कब सरवाइव करेगा अनीशा? जब वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करेगा. तो लॉन्ग टर्म है तब तो इसका मतलब सरवाइव कर ही रहा है. कंपनी सरवाइव करेगा कब? प्रॉफिट मैम, अर्न जब करेगा. कम से कम ब्रेक इवन तक रहेगा. पॉजिटिव डिसीजन होगा. एक काम करो, तुम लोग सब बोल लो, कोई हैंड रेस करके बोलो. चलिए मैं बताती हूँ. कंपनी विल बी सर्वाइव व्हेन इट इज अर्निंग द रेवेन्यू. रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? जितना हम प्रोडक्ट को सेल करें उतना पैसा आ रहा है, और उसके साथ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना. प्रॉफिट अर्न करेगा तब वो सरवाइव करेगा. अगर तुमने बिजनेस चलाया और 1 साल तक तुम्हें प्रॉफिट नहीं आया तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा क्या आगे? नो मैम. नो. Business cannot run without profit. True? So survival का मतलब है कि वो बेसिकली एग्जिस्ट कर पाए. तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल तभी है आपके ऑर्गेनाइजेशन का when it is earning profit. क्लियर हो गई बात? सो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला जो आएगा दैट इज सर्वाइवल. सेकेंड, व्हाट इज इट? प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब ये सर्वाइवल के लिए इन्होंने यही बोला, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट आर इंटर रिलेटेड. नेक्स्ट वन इज व्हेन देयर इज अ सर्वाइवल, when there is a profit, then there is a survival. When there is a survival for the long time, then it is that organization is able to grow. ठीक है? So somehow these 3 terms are interrelated in the organizational objective: profit, survival and then growth. ग्रोथ का मतलब क्या है? जब आप एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, आगे चल करके आपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, मोर देन वन प्रोडक्ट यू आर सेलिंग नाउ, दैट फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, that is doing the same thing. They have a multiple product line. They have multiple product line. It means they are selling beverages, they are selling bathing soaps, they are selling washing powder, all these things, right? So in short, when there is a growth, the number of the market share will be increased, consumers will be increased, the product which you are offering, that will be also increased, right? So basically this is possible when you are getting the profit. Clear? So here, what is the first thing? Profit,
survival and growth. So I guess organizational objective is clear. What happened, Yes, Pratyay ma'am. and Ashish? जोक वोक चल रहा है क्लास में? Then personal objective. What is that? Personal objective. Personal objective is related that management typically decided the financial incentive, salaries, perks and social incentives for their employees. So management का aim सिर्फ organization के लिए better करना नहीं है, उसके साथ साथ they are focusing on the employees. Now the question is why? Because employees are those resources who are basically doing so many works, and they are the people who are implementing all the policies, and they are basically what they are doing so many work. काम तो करते ही करते हैं, साथ साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में भी आपकी हेल्प करते हैं, समय पे टारगेट पूरा करते हैं. ट्रू. सो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स द अदर वर्क विल बी नेवर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. सही बात है कि नहीं? यस मैम. पैसे की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में. इफ द पीपल हु आर रिलेटेड विद द फाइनेंस विल नॉट डील विद द बैंक एंड अदर्स, how you are going to get the finance? No chance. So personal objective, if the person is satisfied in the organization, for example, if A is a person who is doing job in XYZ company, तो उस person को हर year appraisal मिल रहा है, उसको अपने performance के basis पर incentive मिल रहा है, साथ साथ में additional perks मिल रहा है, जैसे उसको tour वगैरह का option मिल रहा है, मंथ में एक बार या 3 महीने में एक बार पार्टीज थ्रू किया कर रहा है कंपनी. तो ये एक पर्सन हुआ ए. एक बी पर्सन है हु इज डूइंग जॉब फॉर 2 years, 3 years, 4 years. ठीक है. That person is not getting appraisal, that person is not getting incentive, that person is not motivated toward his work. Do you think that which one is able to do work properly, A or B? A, ma'am. A, because A have reason to do for become loyal toward your organization, because organization is also take care of that person. True? सही बात है. So जब personal objective आपका achieve होगा organization में, management के through अगर personal objective achieve हो रहा है, so somehow it is making the goal more easier to accomplish. True? आई बात समझ में? अगर आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका अपना बेनिफिट उसमें नहीं है ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कभी नहीं सोच सकते. बात क्लियर हुई? बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इफ यू विल स्टार्ट डूइंग जॉब एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू विल मेक एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? नहीं. तो सेम यहां पर है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रॉपर सैलरी, पर्क, सोशल इंसेंटिव्स देना चाहिए. एक्टिविटीज, इससे क्या होगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होंगी. ठीक है. जो उनके पियर्स और जो उनके मैनेजर्स वगैरह भी जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल और पैसे से रिलेटेड अप्रेजल और बेनिफिट्स दें. देयर आर सम अदर थिंग्स विच इज नॉन मॉनेटरी, जैसे रिकॉग्निशन, जैसे प्राइज, सर्टिफिकेट. ठीक है. एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में काम, मतलब कुछ भी आप ऐसा अगर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली फॉर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो पर्सनल ग्रोथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट. देन देयर इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव. सी, इफ यू आर डूइंग जॉब, इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस एंड एक्टिविटीज इन द सोसाइटी, वी हैव टू थिंक अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव एज वेल. लाइक एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स रखिए प्रोडक्शन का, लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाइए, इकोनॉमिकल कॉस्ट प्रोडक्ट बनाइए, फेयर वेजेस दीजिए, यानी अपने एम्प्लॉइज को सही मतलब वेज दीजिए. वेजेस जो होते हैं और सैलरी में ये अंतर है कि वेजेस डेली बेसिस पे मिलता है, सैलरी फिक्स्ड अमाउंट मंथली बेसिस पे मिलता है. क्लियर? ठीक है. तो और हेल्थ केयर और एजुकेशन के सेक्टर में आप कुछ कर सकते हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज समहाउ रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई गेस आई डोंट नीड टू इलैबोरेट इट अ लॉट. सही बात है? समझ में आया? Okay. Yes. What is the importance of management?
What is the importance of management? लिखिए, importance of management. Helps in achieving group goals. Helps in achieving group goals. Helps in achieving group goals. Always remember one thing. I'm sharing the screen. Always remember one thing. What? Like if this is an office and in every department the people are doing job here, 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 in this, and in this. Every people, everyone, every department is work is going toward only one direction, and this is something organizational goal. So whatever you're contributing through your work, overall that is going to contribute to overall organizational objective. So अगर आपका effective management है, if the management is effective, implemented properly, then it is going to make, ये क्या करेगा, individual goal को, जैसे आपके personal अपना कोई goal है, individual goal को, that will shift toward the overall organizational goal. So management is the only tool which is helpful for that. So it is going to help in achieving the group goals. ठीक है? It is effective management gives a common direction to individual efforts and guides them achieving the overall goals of an organization. यानी organization के overall goal को achieve करने के लिए एक single direction जो है वो चलेगा, और ये तभी possible है जब management effective है. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Second one is increases efficiency. Increases efficiency. Increases efficiency. Increases efficiency. अच्छा, what is the meaning of efficient? Efficient का मतलब क्या होता है कि जब आपका cost जो है वो कम हो जाए और productivity बढ़ जाए. That is efficiency. क्या? प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और आपका कॉस्ट डिक्रीज, है ना? तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि इंक्रीज होगा एफिशिएंसी व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन इन एवरी सेक्टर और स्फीयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then somehow you don't need to give the extra effort, you don't need to incur our money a lot, but that is how, if the management is proper, the potential of the employees will be at the peak. They will try to, बोल सकते हैं ना, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, हाई रहेगा. और एक और भी चीज मैंने बताया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट. सो समहाउ ये एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट वन इज, अब ये जो दो पॉइंट है इसको मैं बिल्कुल भी आप लोग को इलैबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि आप ये दोनों पॉइंट जानते हो. पहला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. Create a dynamic organization. And next में लिखिएगा, helps in achieving the personal objective. Increases, पहला था helps in the achieving group goals. Increase efficiency. Create a dynamic organization. Helps in achieving the personal objectives. Okay. Next one is levels of management. तुम लोग को मैं आज मिनी कोर्स करवा रही हूँ बिजनेस स्टडीज पे. चलिए लिखिए, टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट. अच्छा, टॉप मैनेजमेंट कौन होता है? प्रत्यय बताओ जरा, टॉप मैनेजमेंट कौन होता है बेटा? मैम टॉप मैनेजमेंट जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, जैसे मैम सॉरी बताते हैं, मैं बता देती हूँ. निधि बताइए. एक मिनट सबको मिलेगा मौका. निधि बताओ बेटा, रोल नंबर 46. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैम, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैम और इतना है, नहीं याद है. वेरी गुड. हाँ, और कोई बच्चा बोल रहा था, हैंड रेस करके बोलो बेटा. अच्छा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं टॉप मैनेजमेंट में? टॉप मैनेजमेंट में होते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, जैसे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे जो पोजीशंस आप सुन रहे हो, ये सारे के सारे आपके टॉप मैनेजमेंट में है। अब ये टॉप मैनेजमेंट में वाले करते क्या है भाई? कुछ तो करते ही होंगे। व्हाट इज देयर फंक्शंस? सो टॉप मैनेजमेंट जो है दैट इज बेसिकली डूइंग द पॉलिसी, दे आर बेसिकली मेकिंग द पॉलिसीज। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं। और ये पॉलिसीज बना करके और उसके अलावा ये बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को भी एनालाइज करते हैं कि किसी भी मैक्रो एनवायरनमेंट से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी वो एनालाइज करते हैं। और साथ साथ में ये कंपनी के लिए गोल्स सेट करते हैं। सो पॉलिसी मेकिंग हो गया, कंपनी के लिए गोल सेट करना हो गया, मैक्रो एनवायरनमेंट या आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना हो गया, और स्टेक होल्डर्स के वेलफेयर के बारे में सोचना। तो पॉलिसीज के थ्रू ये वेलफेयर ही सोचते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। हु इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग? टॉप मैनेजमेंट। एंड हु आर बेसिकली द टॉप मैनेजमेंट? हु आर बेसिकली इन who are in top management? कौन रहेंगे? What is the designation of those people? So आपके हो जाएंगे वो चेयरमैन, आपके हो जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो आई गेस इतना सारा पता लग गया होगा कि क्या क्या मैंने बताया। सीओओ, सीटीओ, सीईओ, सीएफओ। खैर इतना याद करने की जरूरत नहीं, काफी है। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब मिडिल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? मिडिल मैनेजमेंट में कौन होगा? सो मिडिल मैनेजमेंट में आपके सबसे ज्यादा होते हैं आपके मैनेजर। कौन होते हैं? मैनेजर। जैसे आपका ऊपर ये टॉप लेवल है, अब यहाँ पर जो मिडिल लेवल होंगे इसमें आपके मैनेजर्स होंगे। कौन से मैनेजर होंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे। जैसे यहाँ मैंने डिपार्टमेंट में बताया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फिर आपका प्रोडक्शन मैनेजर और रिसर्च मैनेजर। सो ये जितने भी मैनेजर्स होंगे दे आर बेसिकली इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? इट इज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड व्हाट दे आर डूइंग? दे आर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। यानी कि टॉप लेवल ने पॉलिसी तो बना दिया, लेकिन उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू करने का काम यानी इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, दे आर बेसिकली गाइडिंग द लोअर मैनेजमेंट पीपल। जो आपके लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स वगैरह है, उनको ये गाइड करते हैं। सारे के सारे रिपोर्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट्स के रिपोर्ट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर बेसिकली अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एज वेल एज इन लोअर लेवल। ठीक है, सो इनका जो जॉब होता है, जो भी पॉलिसी फ्रेम किया गया था वही मैंने बताया कि उसको इंप्लीमेंट करे और सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना इज द मेजर वर्क ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Next one is the lower level management or the operational management. Lower level management or the operational management. Lower level or the operational management. ठीक है, अब ये यहां पर क्या होता है आपका? लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो सुपरवाइजर्स और फोरमैन नहीं होते, सुपरवाइजर और फोरमैन जो इंडस्ट्रीज में आपके वर्कर्स को गाइड करते हैं कि भाई ये मशीन पे ये काम करो, ऐसे करो। जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, जो फोरमैन होते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल वर्क में वर्कर्स का साथ देते हैं, वर्कर्स को हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सो दे आर सुपरवाइजर्स और द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री। Top level policies makers, middle level policy implementation, and the operational level they are basically responsible for doing the things। मतलब जो course of action, मतलब action, sorry not course of action, action को लेकर
एक्टिविटीज करने का काम इनका होता है, लोअर लेवल का, ये करवाते हैं अपने अंडर में वर्कर्स से। सो सुपरवाइजर, सेक्शन लीड्स और द फोरमैन या फिर 4 पर्संस जो हैं who directly oversees the effort of the workforce, they are responsible for the quality control and they are responsible for ensure the work meet deadline, यानी जितना जो डेडलाइन है उससे पहले काम कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर इन सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है? दे आर सुपरवाइजिंग द वर्कर्स हु आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। सो दिस इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। आई गेस दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ओके, सो आई गेस प्लानिंग और स्टाफिंग ये सब एक बार देख लेना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आई थिंक जितना मैंने बताना था बता दिया उसमें, प्लानिंग में और स्टाफिंग और ये सब में, है ना? चलिए, यस मैम। ऐसे तुम लोग एथिक्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, फिर कुछ एक्ट्स है, उन सब के बारे में जरूर पढ़ लेना। बाकी एक चीज और, okay, so next move toward the next question, that is management is both science as well as art. So management आपका विज्ञान भी है और मैनेजमेंट आपकी क्रिएटिविटी से, आर्ट से भी रिलेटेड है। चलिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट को हम दोनों कहते हैं, आर्ट्स भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज आर्ट? आर्ट इज समहाउ इट इज रिलेटेड विद द क्रिएटिविटी, ठीक है, आपका एक स्ट्रीम से रिलेटेड है। जैसे आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स हम लोग का है ना, तो ये आर्ट्स भी है और साइंस भी है। अब आर्ट्स कैसे है ये? क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट जो है ये वेल डिफाइंड लिटरेचर पे बेस्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, इसमें थ्योरीज पे बेस्ड है आपके मैनेजमेंट। अगर हम एग्जांपल ले तो देखिए एफडब्ल्यू टेलर के ऊपर, एफडब्ल्यू टेलर ने हमें मैनेजमेंट की थ्योरीज दी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हम हेनरी फ्योल को लें तो हेनरी फ्योल ने हमें 14 आपकी प्रिंसिपल्स बताए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को लेकर के, बताया है ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बताया है, एक ने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बताया है। मैनेजमेंट जो है आपका नॉलेज है, मैनेजमेंट नॉलेज जो है कैन बी एम्प्लॉयड बाय एवरीवन इन देयर ओन वे। जो मैनेजमेंट का नॉलेज है ना, सबका सिमिलर नहीं है, सब सेम नहीं सोचते, एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड रीजन, सबका अपना अपना तरीका है मैनेज करने का चीज, है ना। अब एग्जाम्पल में तुम लोग भी एग्जाम्पल लो कि आपकी मम्मी जो है वो कॉपी किताब को प्रॉपर्ली अरेंज करके टेबल में रखती होंगी और आप उसी कॉपी किताब को अरेंज करके अपने कबर्ड में रखते होंगे, है ना। So you both are doing the same thing, you both are basically arranging the things, but the ways you both are using that is different. That is अब अगर किसी को हम लोगों ने एक पेंट दे दिया, एक पेंट का एक आप बोल सकते हैं एक शीशी दे दी हमने, एक ग्लास दे दिया पेंट के लिए, एक कलर्स और एक ब्रश दे दिया, तो हो सकता है कि गौरव विल मेड द अदर, कुछ और बनाए, वो डिजाइन कुछ और बनाए, अनीशा उसका कुछ और पेंटिंग करे, आशीष कुछ और शुभान कुछ और। That is possible. So like the utilization and the ways of the management can be totally dependent upon the person, like who is managing the thing, how much creative he or she is, है ना। that's why it is a arts. उसके अलावा मैनेजर्स जो होते हैं वो थ्योरीज और प्रिंसिपल से आपके सिचुएशन को हैंडल करते हैं, that's why, and they are communicating with the people in the different ways. The communication can be vary, like communication जो message है that will be same, but the communication के जो तरीके हो सकते हैं that can be different, ठीक है। innovation हो सकता है, उसमें कुछ ideas आप add कर दो, है ना। जैसे अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर को देखिएगा तो उनका डिजाइन बनाने का स्टाइल अलग होगा, एक पर्सन अलग तरीके से मैनेज करा, एक पर्सन अलग तरीके से, but both designation is same, they both are the interior designers. So here it is telling about that arts is all regarding communicating, innovating, and such as two artists will be enact the same scene in the different two ways. मतलब दो artists same चीज को अलग अलग ways में present कर सकते हैं, and the same thing is happening in the management. That's why it is an art. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Why it is a science? Why it is a science? See, science is something which is related with the experiment. True? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो साइंस जो है वो एक मेथोडोलॉजिकल डिसिप्लिन है, यानी जब तक उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मेथड्स नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट। साइंस इज ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड,
लाइक एक्सपेरिमेंट का दो सिचुएशन होगा, पास एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल या एक्सपेरिमेंट फेल, है ना। सो साइंस यही हो, इट इज टोटली मेथडोलॉजिकल एंड लाइक साइंस मैनेजमेंट जो है वो भी आपके थ्योरीज और प्रिंसिपल पे रिलाई करता है। ये अलग बात है कि लोग जो है वो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन स्टिल बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स, दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस। लाइक जैसे साइंस, हमने फिजिक्स का साइंस, फिजिक्स के बारे में पढ़ा है कि फिजिक्स में आपका कौन से लॉज होते हैं आपके, मैं तो लॉज भी भूल गई। एग्जैक्टली तो जैसे कैसे वो लॉज होते हैं, बन जाते हैं कि ऐसा ही होगा, लाइक समथिंग। तो मैनेजमेंट में भी दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। लाइक मुझे साइंस पढ़े हुए आई गेस 12 साल हो गए, तो दैट्स व्हाई मैं खुद भूल गई। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस, लाइक द एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस। Like if we are doing the experiment in the chemistry lab, when we are mixing acid and the other acid, multiple जो भी आपके बोल सकते हैं बेसिस, एसिड, CSF जो हम यूज करते हैं, मिनरल्स जो भी हम यूज करते हैं, सो उसका एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लाइक दिस स्टेप्स, ठीक है। कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया है ना। तो दे हैव, जैसे उसमें स्टेप्स होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स के, साइंस में, है ना। कोई भी रिजल्ट एक बार में तो नहीं आता है। मुझे याद है कि जब मैं साइंस 6-7 में पढ़ती थी, उस समय हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के देखते थे, पेजेस एनसीईआरटी बुक में बने होते थे। हनी कॉम्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था, ओनियन पील के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था, लाइक टिश्यूज कैसे होते हैं, क्या होता है, लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग। सो दैट इज, साइंस इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड द सेम वे द मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस। नेक्स्ट वन इज थ्योरी जो है इन साइंस हैव डेवलप्ड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन। सी, कोई भी थ्योरी और लॉ जो है साइंस का, वो एक बार में ऐसे नहीं बना फटाफट। वी हैव अ प्रॉपर support and we have proper evidence which is supporting those laws and observation, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर कोई थ्योरी और लॉ बनता है, वैसे ही सेम आपके मैनेजमेंट में भी हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले उसको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो जितने भी थ्योरीज बने हुए हैं आपके, एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरीज हो या फिर आपके हेनरी फ्यूएल की थ्योरीज हो, मैक्स वेबर की थ्योरीज हो, ठीक है, शम्फिटर की थ्योरीज हो, मल्टीपल थ्योरीज आर गिवन ऑन द मैनेजमेंट। सो एवरी थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। Sometimes even the theorists observe those things, or either they observe in that in environment where the person is working. Like F.W. टेलर जो थे, खुद वो इंडस्ट्री में काम करते थे, तब उन्होंने ये सारी चीजों को समझा, है ना। So like science is based on the theories and those theories are based on the observation. Same, the theories of the management are also based on the observation. That's after that is basically implied in the management for the long run. तब जाकर उसको मैनेजमेंट में इम्प्लाई करना हमने शुरू किया। नेक्स्ट वन है साइंटिफिक थ्योरीज का यूनिवर्सल लीगैलिटी है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। वैसे ही आपका साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। और ये जो थ्योरीज होता है ना, ये प्रिंसिपल्स जो होता है, ये आपके मैनेजर के लिए एक इंस्ट्रक्शन और एक बुक है जो कि उसको हेल्प करता है, गाइड करता है दैट हाउ यू कैन डू द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। So this is the whole situation of management is an art as well as management is also a science. Clear ho gayi baat? And we are studying this in the commerce or in the management, right? Yes, ma'am. Business administration. Chaliye, I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. So let's move toward the next point. That is, what is the technological factor? I'm sharing the screen. Okay. So one question is there. You all can see that the factors of impact of technology in the business. The factors of impact of technology in the business. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है?
आपका व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? दैट इज अ वेरिएबल विच इज रिलेटेड विद द एग्जिस्टेंस एंड द अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज चेंजेस हो रहा है, अवेलेबिलिटी हो रहा है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, हाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस? किस तरीके से अफेक्ट करता है बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल फैक्टर? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसे हेल्प करता है बिजनेस को, इफेक्ट कैसे करता है? मैम टेक्नोलॉजी में ही आता है, ई कॉमर्स ये सब। It is basically making the life easy as well as it is helping us to enhance the, बोल सकते हैं enhance the other technology as well. Technological changes आएगा, that is basically changes in the economy में भी changes आएगा। ई कॉमर्स देखिए, ई कॉमर्स का आप जैसे टेक्नोलॉजी में, अब टेक्नोलॉजिकल थिंग है ई कॉमर्स, उसने इकोनॉमी में पूरा चेंज वो लेकर आ गया है ना? द पीपल स्टार्टेड रिलाइंग ऑन द ई कॉमर्स नाउ। सो समहाउ वी कैन से दैट द टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव भी है, समहाउ इट इज नेगेटिव। लाइक अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो गेमिंग एंड ऑल, समटाइम्स दैट इज स्पॉइलिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन एंड ऑल, बट दैट इज अ वन फेज ओनली, एक ही तरीके से। लेकिन आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ा है बिजनेस का, जो मैंने आप लोग को क्लास में करवाया भी है, आई गेस करवाया है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो यू हैव टू राइट अबाउट। Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ 3D टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर कैलकुलेशन जल्दी हो गया, टाइम सेविंग हो गया, अब इंजन इफिशिएंसी हो गया, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, वायरलेस चार्जिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, SEO हो गया। तो these all are the examples of the technological factors which are affecting the business, like the payment procedures are changed, the purchasing pattern is changed, ठीक है, delivering pattern is changed, अब ऑनलाइन सब कुछ मंगवा सकते हैं, घर पे आ जाएगा। So these things are changed because of the technology. So I guess this point is clear to all of you. Any questions left in this? There is one question, that is mean of formal and informal organization. I am going to send the notes of this in the group, right? Okay, see you all in the next class. Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Clear? Okay. यस मैम। All the very best for the examination. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If anyone have any doubt, ठीक है, the examination is on 28th, 28 तारीख को एग्जाम है। कभी भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम लगे, डोंट हेजिटेट, आस्क द क्वेश्चन। बिल्कुल हेजिटेशन मत रखना, एग्जाम का टाइम है, प्रेशर मत लेना, आराम से करना, आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.